Dear students, here we are going to do geometry's sixth chapter, that is trigonometry. In this chapter, first let's understand what is trigonometry. Tri means three, gono means sides, metry means measurement. If there is a right angle triangle and we want to find measures of all the sides of the triangle, then there are different formulas, ratios and theorems by which we can find the value of the sides. So basically this chapter is based on many formulas. So let's understand the given formula on the board, which is also called as trigonometric ratios. In this triangle, this is theta. Theta means angle. So whatever sides we are talking about, we will talk it keeping this theta in mind. In place of theta, I can call this as angle ACB. But calling ACB, in place of that, I am using theta. So this becomes angle theta. So trigonometric ratios means something upon something. What something? That is sides. Sin theta. If I ask you what is sin theta trigonometric ratios, what are the trigonometric ratios according to sin theta, then you will tell me sin theta means opposite side of theta upon hypotenuse. Now this is theta. The opposite side is this one and the hypotenuse is this one. So opposite side of theta is means opposite upon hypotenuse is AB. AB upon AC. So if I have given the value in the question or in the diagram, you can put the values here. If the value is not given, then you can just find the side's name. That's it. If the question is what is cos theta ratio? Cos theta means adjacent side. Adjacent means बाजू वाला. Adjacent side of theta, that is BC upon hypotenuse AC. Okay. So student have to remember this. This is the shortcut of this. I have written the shortcut. So you have to remember what upon what so that you can write the side's name. Next is tan theta. Sin theta, cos theta, tan theta. Tan theta means opposite side of theta upon adjacent side. AB upon BC. Done. Next is इसका अपोजिट होता है कोसेक. कॉस का होता है सेक. tan का होता है कॉट. ओके. सो साइन का कोसेक, कॉस का सेक, tan का कॉट. तो इनके रेशियोज भी और उनका रेशियो का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू भी चेंज हो जाता है, मतलब अपोजिट हो जाता है, नाम चेंज हो जाता है. जैसे यहाँ पे AB अपॉन AC था तो यहाँ AC अपॉन AB हो जाएगा. यहाँ अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज था, यहाँ पे उल्टा हो गया. अंडरस्टूड. तो अगर आपको ये तीन बाय हार्ट है तो ये तीन अपने आप आ जाते हैं. क्लियर. अब इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे? क्वेश्चन आपको आएगा कि कुछ वैल्यूज दी गई है, उसको चेक करके बताओ कि ये साइड का कितना वैल्यू, ये साइड का कितना वैल्यू. तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करके जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ. Now students, you can see there are many formulas written on the board. So let's try to find out the relation between them and then we'll come to know how to apply them. And it is very much mandatory, that means very much important, that you remember these formulas, these trigonometric identities and the ratios
and their application. Otherwise, this lesson is useless without knowing the formulas. So here, sin theta upon cos theta equals to tan theta. जैसे मैं बोलता हूँ कि एक रेड कलर का फ्रूट है, उसका इंग्लिश में नाम ए से शुरू होता है, तो आपके दिमाग में तुरंत आइडिया आता है एप्पल। एप्पल। वैसे ही जैसे ही मैं बोलता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो आपके दिमाग में आइडिया आना चाहिए tan थीटा, और इसका ठीक अपोजिट है, ये देखो उल्टा हो गया यहाँ पे, तो ये बन जाएगा tan की जगह पे cot थीटा, क्योंकि tan का अपोजिट भी cot होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है sin थीटा इक्वल्स टू, थीटा मींस एंगल होता है, थीटा की स्पेलिंग मैंने लिखी हुई है, थीटा मींस होता है एंगल। तो मुझे अगर sin 30 ढूंढना है और मेरे पास पहले से कोई एंगल दिया हुआ है, तो मैं लिखूंगा cos 90 माइनस थीटा। sin थीटा को cos 90 माइनस थीटा में लिखा जा सकता है, मतलब ये एंगल को 90 से माइनस करके cos वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इसका उल्टा देख लो, sin को मैंने किया cos और cos बन गया sin, 90 माइनस थीटा सेम। ये अलग अलग फार्मूले हैं, बस चेंज कैसे होता है वो देख लो। यहाँ पे ये चेंज हो है, यहाँ पे ये चेंज होता है। ये एक इंडिपेंडेंट फार्मूला है, tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू 1। इन तीनों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं, जिसमें 1 1 1 आपको दिखाई देगा। इसमें आपको रिलेशन समझना होगा sin cos tan sec cot cosec। इसमें हर जगह पे स्क्वायर है, स्क्वायर ध्यान रखना है, यहाँ कहीं पे भी स्क्वायर नहीं है, सिर्फ आइडेंटिटीज में स्क्वायर है। तो पहले आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। लास्ट है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। अगर ये यहाँ पर है तो मैं 1 को इस तरफ लेके आऊंगा तो माइनस हो जाएगा cosec स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू cot स्क्वायर। तो ये जो यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करने का इक्वेशन में चेंजेस लाने का जो तरीका है, वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनकी जरूरत पड़ सकती है। दैट मीन्स वी शुड बी मेंटली रेडी एंड वी शुड बी अवेयर दैट इस चीज को हम थोड़े अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं। जैसे sec स्क्वायर थीटा अगर लिखा हुआ है तो ये tan स्क्वायर को मैं इस तरफ लाऊंगा तो माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा, तो इस तरफ बचेगा 1, मतलब 1 की जगह पे ये पार्ट में लिख सकता हूँ। इस तरह से हम धीरे धीरे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस और एक्सरसाइज। Now this side, another we have a relation between sin, cosec, cos, sec, tan, cot। ये रिलेशन पता क्यों होना चाहिए? नहीं तो क्वेश्चन में जब वो देंगे sec, तो हम उसको सोचते बैठेंगे अब इसका क्या करूं, तो हमें इन फॉर्मूलेस को रिलेशन वाइज लिंक करके आंसर निकालना होगा। सो sin थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec, cos theta equals to 1 upon sec, tan theta equals to 1 upon cot। By practice you will come to know कौन सा वाला कहाँ पे यूज होता है। फॉर्मूलाज याद रहना पहली बात है, प्रैक्टिस करके उनको अप्लाई करना दूसरी बात है। सबसे अच्छी बात इस लेसन की ये है कि सिर्फ 2 एक्सरसाइज में आपका लेसन खत्म हो जाता है और इजी क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चन थे जहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक लगाना है, ट्रिकी है, और बाकी ये लेसन बहुत ही इजी चैप्टर है। ओके, तो चलो बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। इतने ही फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। इसके आगे एक छोटा सा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है अकॉर्डिंग टू द एंगल।
ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द एंगल, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं sin 30 इक्वल्स टू हाफ या 1/2, sin 60 इक्वल्स टू √3/2, ठीक है। तो थीटा के अपोजिट में जो थीटा को हम अगर कोई एंगल माने, समझो 30 माने, 60 माने, 0 माने, या हमने थीटा को 90 एंगल समझ लिया, तो साइन और कॉस और सेक ये सब के हिसाब से क्या वैल्यूज बनेगी साइड्स की, तो उसका एक फॉर्मूला है यानी उसकी वैल्यूज है। उस वैल्यू को ऑलरेडी ढूंढ के निकाल के टेबल में बनाया गया है, हमें उस टेबल को याद रखना है। चलो उस टेबल को एक बार सॉल्व कर लेते हैं कैसे वो बनता है। Now we can see that there are many values written, like we have to find sin theta when the angle is 0 degree, sin theta when the angle is 30 degree, 45, 60, 90. तो 30, 60, 90 का ट्रायंगल होता है, 45, 45, 90 का ट्रायंगल होता है, 0 एंगल होता है और 90 डिग्री का एंगल होता है, 60 का होता है, 30 का होता है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ है एंगल्स के हिसाब से, तो ये 5 एंगल्स के हिसाब से हम जो एंगल का मेजरमेंट दिया है इसके हिसाब से हम वैल्यूज़ निकालते हैं। तो शुरुआत में हमें पता होना चाहिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की अलग अलग एंगल्स के लिए क्या वैल्यू है। उसके बाद हम बाकी के 3 ढूंढ लेंगे। तो लेट्स फाइंड आउट एंड लेट्स यूज़ द ट्रिक हाउ टू कंप्लीट दिस टेबल। आप इसको लर्न करने जाओगे, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और शायद भूल जाओ, लेकिन ये ट्रिक याद रखोगे तो हमेशा याद रहेगी। ये सोच लीजिए कि आपका दिमाग एक ब्लैक बोर्ड है यानी वाइट बोर्ड है, और आप उस पर जिस तरह मैं वैल्यूज़ लिखने जा रहा हूँ वैसे ही आप अपने दिमाग में लिखोगे और हमेशा याद रखोगे। लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर अभी मुझे लिखना है इसकी वैल्यू, तो मुझे नहीं पता, तो हमेशा याद रखना 0 की वैल्यू, sin 0 is how much? 0. Sin 0 is 0. मैं इसको ब्लैक में लिख देता हूं सारी वैल्यूज को, ठीक है। ये वैल्यू है, ये एंगल नहीं है। साइन थीटा का, तो थीटा की जगह पे मैंने लिया 0, मतलब साइन 0 कितना होता है, साइन 0 तो वो वैल्यू होगा 0। साइन 30 कितना होता है, हाफ। क्यों? पहले से प्रैक्टिस है 9th स्टैंडर्ड में। साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। वैसे भी 30, 60, 90 ट्रायंगल में यही होता था। साइन 90 1। ये वैल्यू आपको याद हो गई तो आपका काम हो गया, मतलब आपको इसकी वैल्यू मिल गई। कैसे? यहाँ पे लिखा है मैंने कॉस मतलब पीछे से रिटर्न आओ। कॉस मतलब ये जो वैल्यूज है इसमें पीछे से रिटर्न आओ और लिखते जाओ 1 1 √3/2 1/√2 हाफ 0। ओके, अब इसके लिए क्या करना है? इसके लिए है tan 0 tan 0 0, तो यहां पे भी 0 कर दो, मतलब नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब मैथमेटिशियन ने उसकी वैल्यू अभी डिस्क्राइब नहीं की। तो tan 0 0 tan 90 नॉट डिफाइंड, मतलब दोनों खाली। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है tan का मतलब 1/√3, tan मतलब 1/√3, तो 30 का लिख दो 1/√3। अब ये वाला 1 नेक्स्ट कॉलम में डाल दो, ठीक है। अब ये √3 नेक्स्ट कॉलम में डाल दो,
क्लियर हो गया? ये आपका कंप्लीट हो गया हाफ टेबल। अब बाकी का हाफ टेबल और भी इजी। साइन का अपोजिट होता है कोसेक और कॉस का अपोजिट होता है सेक और tan का अपोजिट होता है कॉट। ठीक है, जब उनके नाम अपोजिट है तो उनकी वैल्यूज भी अपोजिट हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करो, कोसेक का साइन से कंपेयर करना है। कोसेक 0 क्या होगा, तो 0 बन जाएगा नॉट डिफाइंड, 0 बन जाएगा नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट 1/2 था तो ये हो जाएगा 2, उसका उल्टा 1/√2 तो ये √2, √3/2 so 2/√3। वन का वन ही रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ 0 का नॉट डिफाइंड हो गया, 1 का 1 हो गया, ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया। तो इस तरह मिल गया कोसेक। इसी तरह मिल जाएगा सेक। कॉस सेक का अपोजिट है, तो यहाँ पे 1 है तो 1 का 1 ही रहता है, 2/√3 √2 2 0 का नॉट डिफाइंड। ओके, नेक्स्ट इज कॉट। कॉट हो जाएगा tan का उल्टा, 0 का नॉट डिफाइंड, √3 1 का 1 ही रहेगा, √3 का 1/√3, नॉट डिफाइंड का नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा टेबल तैयार कर दिया। अगर आप इसी टेबल को लर्न करने की कोशिश करते तो आपसे मिस्टेक्स होती, लेकिन जिस तरह मैंने बताया अगर आप ऐसे करोगे, स्टार्टिंग का सिर्फ साइन थीटा का पूरा याद रहना चाहिए, और ये जो यहाँ पे मैंने ट्रिक बताई है ये ट्रिक याद रहनी चाहिए। तो आपको ये सारी लाइन अगर आती है, ठीक है, फर्स्ट वाली, तो आप बाकी को देखो उल्टा उल्टा उल्टा, ये वाला वहाँ आ गया, ये वाला वहाँ आ गया, ये नीचे इस तरह पीछे की तरफ से बनते चला गया। फिर जब आप tan की तरफ आते हो तो tan में आप देखते हो कि पहला 0 है, लास्ट में नॉट डिफाइंड है, और उसके बाद 1/√3 याद रखना है। तो 1/√3 का 1 नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा, √3 सेकेंड लास्ट कॉलम में। तो इस तरीके से 3 साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज मिल जाता है, और उसके बाद कोसेक सेक और कॉट उसका उल्टा बन जाता है। दैट्स इट। अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.1।